So last session we had completed with an important part of chemical bonding, that is MOT, molecular orbital theory. Make sure you do the MOT wala part thoroughly because this is really an important part from where the MCQs are generally asked. पूरे चैप्टर में MCQs MOT के बहुत बार आए हुए हैं. So make sure you do it properly and it's very simple. Scoring है. Now the next section is Fajan's rule, and this is an important rule to decide the covalent or the ionic character for a compound. So let's start with the MCQs. According to Fajan's rule, covalent character is favored by yes, Small cation, large anion. small cation and large anion. Because ionic character के लिए large cation, small anion and low positive charge की conditions थी. So for covalent character, it should have a small cation with a large anion and a high positive charge. So the answer is option 2. Next, which one of the following combination of ion will have the highest polarization? Now covalent character is also called, एक और नाम क्या था? We say that LiCl is having a high amount of covalent character because Li plus का polarize करने का जो power है to share the electrons because of the small size is very high. That is why covalent character को एक और नाम है, that is polarizing power. polarizing power. That's very important. So highest polarization मतलब polarize करने का power. So obvious है कि polarize करने का power छोटे cation और large anion plus उसके साथ high positive charge होना चाहिए. ठीक है. So now if you look at the options, the anion is common in all the options. So obviously आपको anion को तो देखना नहीं है. अब बचा cation. तो cation के लिए we should have a small cation and a high positive charge. So tell me what will be the correct combination? 4. Option 4. Okay. So now if I talk about ferrous and ferric, obviously अगर जितना high positive charge होगा उतना size छोटा होगा. ठीक है. तो ferric is smaller as compared to ferrous. So ferrous ruled out है. lead में भी +2 versus +4 में +4 will be a smaller cation. तो obviously आपके applicable answer जो है या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है. बराबर. Now polarizing power is nothing but the force of attraction between the ions, and that force of attraction is basically given by Coulombic force of attraction, and it was proportional to Q1, Q2 by R. the product of the charges upon the square of the distance between the two ions. बराबर. तो अब यहाँ पर Q1 into Q2 जो है that gives you the product of the charge. So size के साथ जो Q1 और Q2 का factor है that is also very important. So if in option 2 I talk about the charges, it's +4 and -1. तो इसका प्रोडक्ट जो है मैग्नीट्यूड वाइज 4 आएगा, और इस केस में इट विल बी +3 एंड -1, तो इसका प्रोडक्ट जो है 3 आएगा. तो यहाँ पर Q1 और Q2 जो है 4 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पर Q1 Q2 जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा. तो इवन चार्ज इज अ डोमिनेंट फैक्टर. अगर चार्जेस सिमिलर होता तो फिर डेफिनेटली फेरस और ब्रोमाइड का कॉम्बिनेशन वुड हैव बीन करेक्ट, बट व्हेनेवर देयर इज अ चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर, always the answer needs to be given with respect to charge. एक simple example देता हूं मैं. If I talk about, let's say, LiCl versus MgO, इन दोनों में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? ना इसमें कटाइन भी अलग है, अनाइन भी अलग है, चार्जेस भी अलग है. बोलो बोलो. हाँ, MgO. MgO डेफिनेटली, इतना सोचना ही नहीं है. सबसे पहले
If I talk about Li plus and Mg2 plus, Energy. so lithium and magnesium basically show diagonal relation. कौन है ये? आदित्य. Lithium and magnesium diagonal relation बताता है. What was the condition for diagonal relation? Smaller size. Smaller size. लेकिन lithium और magnesium में diagonal relation क्यों है? उसका reason क्या था? Smaller है, लेकिन both the sizes of Li plus and Mg2 plus are similar, comparable है. तो दोनों का sizes comparable है, तो यहाँ पर कटायन का वापस factor इतना dominant नहीं है. ठीक है, बचा अपना anion, तो Cl minus versus O minus 2. Now, if I talk about chloride and oxide, which is a large anion? Right. Chloride. और तीसरा फैक्टर है चार्ज का. अब चार्ज यहाँ पर देखोगे +1 इंटू -1, मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पर 1 आ जाएगा, बट MgO में +2 इंटू -2, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज 4 आ जाएगा. मतलब यहाँ पर इसका जो चार्ज का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है, एंड चार्ज फैक्टर इज अ वेरी डोमिनेटिंग फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द कोवेलेंट कैरेक्टर और पोलराइजिंग पावर और लेटाइस एनर्जी. कोवेलेंट कैरेक्टर बोलो, पोलराइजिंग पावर बोलो, लेटाइस एनर्जी बोलो, तीनों का ऑर्डर जो है वो सेम ही होता है. माइंड दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजिंग पावर, लेटाइस एंथैल्पी और लेटाइस एनर्जी ऑल हैव द सिमिलर ऑर्डर. ठीक है, तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर में MgO विल बी मच मच डोमिनेंट. सिमिलरली अगर मैं NaCl वर्सेस MgCl2 बोलूं तो अनाइन कॉमन है. अब यहाँ पर चार्ज का फैक्टर ही सोच लो बस. तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? MgCl. तो बस समझा? Yes, sir. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए स्मॉल कटायन, लार्ज अनायन एंड अ हाई पॉजिटिव चार्ज, ये तीन कंडीशन के हिसाब से अगर डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है वेल एंड गुड. बट अगर चार्जेस में मिसमैच है तो चार्ज का जो प्रोडक्ट है उसको भी आपको एक बार चेक करना है. Q1 into Q2 is a dominant factor. ठीक है, next should be simple. Correct order of covalent character of alkaline earth metal chloride is 3, because beryllium जो है उसका polarize करने का पावर बहुत ज्यादा है, and down the group the covalent character decreases, ionic character increases, so the answer is 3. And which of the following is in order of increasing covalent character? तो ये जो ऑर्डर है वो लेफ्ट टू राइट का है. One. 1 नहीं, थर्ड होगा ना बच्चा. लिथियम इज +1, बेरिलियम इज +2, बोरॉन इज +3, कार्बन इज +4. चार्ज का फैक्टर अगर देखोगे तो अनडाउटेडली +4 इंटू -1 CCl4 डोमिनेट करता है. दूसरी बात, लेफ्ट टू राइट जो है वो साइज भी तो घटता है, मतलब सबसे छोटा कटायन लिथियम नहीं है, कार्बन होगा, बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड. तो इन शॉर्ट अगर मैं जनरलाइज करूं तो डाउन द ग्रुप कोवेलेंट कैरेक्टर गोज ऑन Decreasing. डिक्रीजिंग. सी, एक ट्रेंड लिख लो, ये जनरलाइज ट्रेंड है. कोवेलेंट कैरेक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, बिकॉज ऊपर वाले कटायन का पोलराइज करने का पावर बहुत ज्यादा होता है, एंड लिथियम इज द बेस्ट एग्जांपल टू रिमेंबर. And left to right, generally the covalent character will go on increasing. Got it? और ये ट्रेंड कब अप्लाई होगा? ओनली व्हेन द आयंस आर बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड और द सेम ग्रुप. अलग अलग होगा तो फिर आपको चार्ज का फैक्टर भी आपको चेक करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? बिकॉज यहाँ पर तो चार्ज सेम ही होगा ना.
जब हम टॉप टू बॉटम करें या लेफ्ट टू राइट करें, ठीक है, तो इन केस ऑफ टॉप टू बॉटम तो आपका चार्जेस में कोई फर्क नहीं, खाली साइजेस का फर्क आएगा, राइट। और लेफ्ट टू राइट में साइज एंड चार्ज दोनों आएगा, जिसमें चार्ज को डोमिनेटिंग फैक्टर कंसिडर करो एंड लेफ्ट टू बॉटम नहीं, लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो द आंसर इज क्लियरली ऑप्शन 3, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कोवेलेंट एंड आयोनिक कैरेक्टर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, in which of the following compound the cation has pseudo inert gas configuration? What is pseudo inert gas? Similar to an inert gas. Similar to An inert gas. हाँ, बट फर्क क्या है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में? क्या फर्क है? इट्स नॉट सेम। Pseudo inert मतलब similar to inert gas, but it will also have the D10 or F14 configuration along with S and P completely filled, और ये जनरली आपको डी ब्लॉक के कटायंस में मिलेगा। तो ऑप्शन को देखकर आंसर तो क्लियर है, it's cuprous chloride. Why? Because when copper loses one electron, its configuration in the neutral state was 3d10 4s1. एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी आर्गन 3d10। तो इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं आर्गन को, बट आर्गन 3d10 combinedly is a pseudo inert gas configuration. So this will be only for the D or the F block elements, और जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में जनरली दिखेगा, S and P ब्लॉक में। समझा? Yes, sir. बाकी ऑप्शंस क्लियरली देख सकते हो, इट्स नथिंग बट द S और द P block ions. Next, which one of the following pairs of elements is most likely to form an ionic compound? Boron and chlorine would form a compound BCl3. Potassium and oxygen can form K2O या फिर KO2. Now, if I talk about K2O, it's +1 and -2. What is this called? Sorry? Oxide. Oxide. If I talk about +1 and -1, O2 -1. Superoxide. Superoxide. And if I write K2O2, Peroxide. peroxide. ठीक है, so these are the oxides, superoxides and peroxides. Chlorine and oxygen can form various oxides. सबसे simplest की अगर बात करूँ तो +1 and -2 वाला oxide will be Cl2O, and aluminium and iodine would form a compound AlI3. अब आपसे पूछा गया है सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड? Two. 2, because potassium and oxygen have a large difference in electronegativity. That is also one of the factor for an ionic compound formation. So generally a covalent bond is formed between two elements in which the difference in electronegativity is less. Ionic compound is formed by those elements in which the difference in the electronegativity is high. तो यहाँ पर ionic compound के लिए delta En, the difference in electronegativity must be high. So metal और non metal generally ionic bonds बनाते हैं, but ionic bonds में कुछ percentage covalent character हो जाता है polarizing power की वजह से. That's how we arise at the concept of covalent character. And next, among the ions sodium, magnesium and aluminium, the correct order of ease of formation of ionic compound is? Two. Obviously, sodium has a high tendency to form an ionic compound followed by magnesium and aluminium.
Aluminium के most of the compounds are covalent. AlCl3 ले लो, AlI3 ले लो, they are all covalent compounds. So next section is polarity of bond, dipole moment, hydrolysis, and back bonding concept. So first question, which hydrogen is most polar? HF. HF. And the reason will be? Large difference in electronegativity. Perfect. Hydrogen has an electronegativity of 2.1 and fluorine is 4.0. Delta En यहाँ पर बहुत ज़्यादा है. That is why इसका polarity जो है that will be very high. So we know that HCl is a covalent compound, but it is polar due to difference in electronegativity. That is the reason we say HCl is a covalent compound, but with ionic character. तो इसका indirectly एक और question ये हो सकता है कि which of the compound is having a high percentage of ionic character? तो आंसर वहां पर HF ही होगा. Either polar बोलो या high percentage of ionic character, it's one and the same. Got it? अलग अलग तरीके हैं पूछने के, right? Most polar या फिर having high percentage of ionic character. Now tell me, percentage of ionic character find करने के लिए, if you know the difference in electronegativity, what was the formula? Percentage ionic character, when the difference of electronegativity is known, what is the formula? दिया हुआ है पहले मैंने. (16 delta En plus 3.5 delta En square). Superb. It's 16 times the difference in electronegativity plus 3.5 difference का square. अगर आपको कोई भी unknown elements का ionic character find करने बोला है, where the difference of electronegativity is given, just apply this formula. ठीक है. और परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर को डाइपोल मोमेंट के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, जो हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं. तो एक फॉर्मूला ये है आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने का. आयोनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए फजान्स रूल, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है और दूसरा डाइपोल मोमेंट का है, जो मैं डिस्कस करूंगा अभी. ठीक है, ध्यान देना. परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर के 3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3 टाइप्स. To determine which is high ionic character, to determine the magnitude when the difference of electronegativity is given, and to determine when the dipole moment is related. Next, which has maximum dipole moment? Now, what is a dipole moment? Charge into distance. It is equal to charge multiplied by distance. Is it a scalar or a vector quantity? Vector. Vector quantity. तो अगर यहाँ पर ये दो vectors हैं mu1 and mu2, then how is the dipole moment calculated? By using mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 cos theta. parallelogram law use करेंगे, mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 into cos of theta. तो बेसिकली यहाँ पर थीटा के ऊपर डिपेंडेंट होगा. तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स का. तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट विल बी फॉर फॉर अ ग्रेटर एंगल और लोअर एंगल. लोअर एंगल ना भाई, कॉस है, कॉस ऑफ थीटा है. ठीक है, तो थीटा जितना छोटा उतना म्यू ज्यादा होगा. तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट के लिए लोअर थीटा देखना है. तो ऑब्वियसली आंसर फर्स्ट होगा. कि नहीं? Yes, sir. Next, of the following molecules, the one which has a permanent dipole moment is. Permanent dipole moment मतलब
the molecule will have a net dipole moment which is non-zero. मतलब अगर मैं BCl3 की बात करूं तो बोरॉन एंड क्लोरीन इज पोलर ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, but overall molecule is non-polar because of the planarity. तो BCl में इसका जो डाइपोल है that will be indicated like this. This is the dipole का symbol, right? तो ये दोनों का resultant इस direction में होगा, and now these two dipoles or the vectors will cancel each other and overall this molecule will be non-polar. ऐसे बहुत सारे examples है. बोरॉन के बाद अगर कार्बन की बात करूं तो CCl4 CH4 overall non-polar है ना. See, the bond CCl is polar due to difference in electronegativity. Molecule as a whole will be non-polar. उसी को बोलते हैं permanent dipole moment. समझा? ये समझा? Yes, sir. Similarly, अगर मैं कार्बन की जगह फॉस्फोरस की बात करूं तो PCl5 will also be non-polar. SF6 non-polar. IF7 will be non-polar. Why? Because PCl5 भी एक परफेक्ट ज्योमेट्री शो करता है ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ये ऑक्टाहेड्रल और ये पेंटागोनल बाइपिरामिड. तो एक सिंपल सा रूल है, अगर सेंट्रल एटम के साथ all the bonded atoms are same and it doesn't have a lone pair, then the mu will always be equal to 0. If central atom, लिख लो, if central atom has all bonded atoms same and doesn't have a LP, then the mu dipole moment will be equal to 0 and we can say it doesn't have a permanent dipole moment. Now look at the options and tell me the answer. BF3. Which has a permanent dipole moment? BF3 बोला कि BF3 बोला? 3. हाँ ठीक, बिकॉज यहाँ पर लोन पेयर होगा, बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होगा एंड उसकी वजह से इट विल हैव अ नेट डाइपोल मोमेंट व्हिच विल बी नॉन जीरो. आंसर 3 होगा. यहाँ देखो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड एटम सेम है और सेंट्रल एटम में कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसका म्यू डायरेक्टली 0 होगा. एंड द रीजन इज क्लियर, इट्स एज पर द वेक्टर्स. गॉट इट? Yes, sir. Next, the dipole moment of given molecules are such that ammonia, boron trifluoride, nitrogen trifluoride. अच्छा, जीरो डाइपोल मोमेंट किसी का है क्या? BF3. Yes. तो आंसर 3. अब मेन चीज था अमोनिया वर्सेस NF3 और ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है. इफ आई टॉक अबाउट अमोनिया और NF3, बोथ will have a pyramidal geometry like this. ठीक है, but in case of ammonia the NH will have the polarity towards nitrogen because of the high electronegativity of nitrogen. ऐसा ठीक है. And lone pair के लिए the vector is always directed away from the central atom. Convention है, lone pair is always having a vector away from the central atom. अब ये तीनों और ये वाला डाइपोल are in the same direction, so they will get added up. Hence इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो let's say mu1 है. अब NF3 के केस में F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो its dipole will be indicated downwards, but lone pair का तो upward होगा. अब यहाँ पर थोड़ा सा कैंसलेशन होगा तो यहाँ पर mu2 जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. That's the reason mu1 is greater than mu2. Understood? Yes, sir. अमोनिया में हाइड्रोजन होने के बावजूद भी
अमोनिया ज्यादा पोलार है। अंडरस्टैंड? अमोनिया Yes, वर्सेस NF3 में थियोरेटिकली सोचेंगे, अरे फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो NF3 ज्यादा पोलार होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। NH3 is more polar than NF3. That's very, very important. Next, now this is important. To find out ionic character with regards to dipole moment. ये न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ, ध्यान देना। The dipole moment of HCl is 1.03 device. D stands for device. If HCl का bond distance is 1.26 angstrom, what is the percentage of ionic character in the HCl bond? अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ यूनिट्स का रिलेशन बता देता हूँ, ध्यान देना। डिवाइस इज नथिंग बट द यूनिट फॉर चार्ज एंड डिस्टेंस, मतलब इसका SI यूनिट कूलम इनटू मीटर के बराबर होगा, कूलम इनटू मीटर। बट जनरली हम कूलम इनटू मीटर ना यूज करके वी यूज अ यूनिट ऑफ ESU, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, टाइम्स सेंटीमीटर। चार्ज इन ESU एंड द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। एंड डिवाइस और ESU सेंटीमीटर का जो कन्वर्जन है, इट्स 1 डिवाई इक्वल टू 10 पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। 1 डिवाई 10 पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, yes, sir. Yes. we know that dipole moment is given as charge multiplied by distance. So here the dipole moment is given as 1.03 device to be converted into ESU centimeter, तो multiply कर लिया 10 पावर माइनस 18 से। अब सामने चार्ज जो है वो ESU में आएगा और डिस्टेंस सेंटीमीटर में सब्सटीट्यूट होगा, राइट? तो दिस विल बी इक्वल टू, चार्ज मुझे नहीं पता, डिस्टेंस दिया हुआ है 1.26 एंगस्ट्रॉम, which will be 10 power minus 8 सेंटीमीटर। देखो, दो कन्वर्जन आ गया, डिवाइस को ESU सेंटीमीटर में किया और एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तब जाके जो चार्ज का वैल्यू है ना, दैट विल बी ऑब्टेन्ड इन ESU। तो यहाँ पर सेंटीमीटर गया, एंड नाउ वी गेट 1.03 into 10 power minus 10 ESU। समझा? ये समझा क्या? Yes, sir. अरे सॉरी, अपॉन So 1.26 we have है to ना, divide. या सॉरी। So 1.26 is almost 1.25, 5 by 4. So 5 by 4 into 10 power minus 10 ESU, which will be equal to 0.8 into 10 power minus 10 ESU। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में the charge needs to be converted into the coulombic charge, which is the standard and commonly used unit. तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, the Q will be equal to 0.8 into 10 raised to minus 10 divide by 4.8 into 10 power minus 10। ESU to कूलम का कन्वर्जन है ये, ESU to कूलम का। ठीक है, क्योंकि 1 कूलम्बिक चार्ज जो है 4.8 into 10 raised to minus 10 ESU के बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ डिवाइड कर लेना है, तो ये निकल जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 1/6 कूलम्बिक चार्ज। क्लियर? समझा? Yes, sir. तो फ्रैक्शन ऑफ द चार्ज अगर पूछा जाए ना, तो यहाँ पर 1/6 मतलब 0.140 ऑलमोस्ट 7.17 के आसपास। ठीक है, Yes, sir. इसको आप परसेंटेज में जब फाइंड आउट करोगे, दैट विल बी अराउंड 17%। परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर विल बी रिलेटेड विद द चार्ज। तो जो फ्रैक्शन ऑफ द चार्ज है वही आयोनिक कैरेक्टर के बराबर होगा, विच विल बी इक्वल टू 17%।
तो करना क्या है, पहले ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके चार्ज को ESU में लाना है और उसके बाद डिवाइड कर लो 4.8 इंटू 10⁻10 से, तो आपको जो फ्रैक्शन ऑफ द चार्ज मिलेगा वही आयोनिक कैरेक्टर के बराबर होगा। तो ये दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल है, डाइपोल मोमेंट और आयोनिक कैरेक्टर को रिलेट करते हुए। नेक्स्ट, which of the following cannot be completely hydrolyzed in cold water at room temperature? Cannot be hydrolyzed. Chloride of boron, phosphorus, boron and carbon. ई ब्लॉक में कर चुके हैं। सोचो ना, BCl3 plus water, does it give you anything? Orthoboric acid. Orthoboric acid. PCl3 plus H2O. Phosphorus acid. और इसका एक ट्रिक था, if you remember, what was the trick? Same oxidation number. Non-metal का halides when dissolved in water will form its oxy acid in the same oxidation state. तो बोरॉन में ऑर्थोबोरिक एसिड मिलेगा, फॉस्फोरस में फॉस्फोरस एसिड मिलेगा, अगर PCl5 होगा तो फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, SF6 होगा तो इट विल गिव यू सल्फ्यूरिक एसिड एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइज कौन नहीं होता है? CCl4। Why? Because जब हाइड्रोलिसिस होता है तो the lone pair from the oxygen gets donated to the central atom. अब यहाँ पर कार्बन जो है, since it belongs to the second period and it has a precise octet, precise मतलब completely filled octet है, उसकी वजह से यहाँ पर अपना वैलेंसी एक्सपांड नहीं कर सकता। It cannot expand its octet. अब आप सोचोगे बोरॉन भी तो सेकेंड पीरियड में है, उसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन बोरॉन जो है इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल एटम, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है बट CCl4 का नहीं होता है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द प्रिसाइज ऑक्टेट ग्रुप 14 फैमिली। प्रिसाइज ऑक्टेट है ना, एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन रिच कहलाता है। तो कार्बन या ग्रुप 14 वाले जो एलिमेंट्स है सेकेंड पीरियड वाले, वो हाइड्रोलाइज नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन इसी फैमिली का SiCl4 होता है क्या हाइड्रोलाइज? Yes. हाँ, और क्या बनाता है? Silicic acid. सिलिसिक एसिड। फॉर्मूला H4SiO4. SiOH 4 टाइम्स, या ओपन करो तो H4SiO4 बनाएगा। तो ये ग्रुप 14 के चैप्टर में भी हमने पढ़ा है, CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता है, SiCl4 हाइड्रोलाइज हो जाता है, और हाइड्रोलाइज होने के बाद इट विल जनरली गिव एन ऑक्सी एसिड इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। अ सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Silica also, right? सॉरी, It can give silica also, right? हाँ, मतलब अलग अलग टेम्परेचर्स में। ये मैंने फाइनल हाइड्रोलिसिस किया है, इसको ब्रेक डाउन करोगे तो सिलिका मिलेगा। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आ चुका है, इट्स अ JEE क्वेश्चन। Which is the true statement about SiH3 thrice N? इसको सबसे पहले बोलते हैं ट्राइसिलाइल अमाइन। ट्राइसिलाइल अमाइन कैसे आया नाम? अगर मैं सिलिकॉन की जगह उसी फैमिली का कार्बन रख दूं तो what you can visualize is CH3 thrice N, which is definitely a well-known compound named trimethylamine or a tertiary amine. Yes? Yes, sir. अब सबसे पहले ट्राइमिथाइल अमाइन की बात करते हैं। व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन हियर? sp3 with 1 lone pair. Superb, because N is bonded to 3 methyl groups and there will be a lone pair, मतलब ये एक पिरामिडल ज्योमेट्री दिखाएगा, बराबर। तो अगर कार्बन की जगह इफ आई रिप्लेस सिलिकॉन
then it should have the similar geometry, है ना? अगर मिथाइल की जगह ये सिलाइल ग्रुप, सिलाइल बोलते हैं इसको, सिलाइल ग्रुप हो तो भी सिमिलर ज्योमेट्री आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? बिकॉज कार्बन जो कि सेकेंड पीरियड में है, इट डजंट हैव द वेकेंट डी ऑर्बिटल, बट सिलिकॉन which is placed in the third period has a vacant d orbital. तो अगर नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है is bonded to silicon जिसके पास एक vacant d orbital है, तो क्या होगा? क्या होगा? Backbone. बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। नाइट्रोजन विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू द सिलिकॉन एटम, और अगर बैक बॉन्डिंग होगा मतलब यहाँ पर लोन पेयर तो एक्चुअली अवेलेबल ही नहीं होगा, एंड इट विल फॉर्म अ पार्शियल पाई बॉन्ड जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लाइक दिस, चेंजिंग द बॉन्ड ऑर्डर आल्सो। अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ व्हाट विल दिस बैक बॉन्डिंग बी कॉल्ड? p pi और p pi d pi? D by D by. ऑब्वियसली नाइट्रोजन का तो p ऑर्बिटल ही होता है, सेकेंड पीरियड है तो d का तो बात ही नहीं आता है। सिलिकॉन में d ऑर्बिटल होता है, तो नाइट्रोजन से सिलिकॉन ये जो बैक बॉन्डिंग हुआ, दिस इज p pi टू d pi बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुआ मॉलिक्यूल में? पॉइंट 1, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल नाउ इज Planar. प्लेनार हो गया। तो जो मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड पिरामिडल था वो अब प्लेनार हो चुका है, और साथ में उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 with no lone pair. sp3 से नाउ इट इज sp2 विदाउट अ लोन पेयर, परफेक्टली प्लेनार ज्योमेट्री होगा। गॉट इट? ऑल्सो in the first case nitrogen had a lone pair because of which it is a Lewis Base. base, but back bonding होने की वजह से अब ट्राइसिलाइल अमाइन, does it have a basic character now? No. No. तो यहाँ पर इसका बेसिक कैरेक्टर भी चेंज हो गया, इट्स नॉट नो लॉन्गर अ ल्यूविस बेस, और इट्स अ कंपैरेटिवली वीकर। कंपैरेटिवली अगर बात करें तो डेफिनेटली ये बहुत ही वीक बेस हो चुका है। अब आ रहा है समझ में? Yes, ठीक sir. है, तो अब सुनो, विच इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ट्राइसिलाइल अमाइन? इट इज ट्राइगोनल प्लेनार? Yes. यस, तो यही आपका आंसर होगा। तो बाकी देखते हैं, गलत होने चाहिए। इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल? नो। इट इज अ स्ट्रॉन्गर ल्यूविस बेस देन ट्राइमिथाइलामाइन? नो। इट हैज अ टोटल ऑफ 9 सिग्मा बॉन्ड्स। अब सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं काउंट कर लेते हैं। Si और 3 H के साथ दिस विल हैव 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, एंड N और Si के बीच में भी सिग्मा है, तो और 3 सिग्मा, प्लस देयर विल आल्सो बी 1 pi bond, राइट? समझा? तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। क्लियर है ये? Yes, sir. So this was the structure. You can observe the trimethylamine is more basic and pyramidal, and the trisilyl amine will be less basic and it will be planar. ये सारे पॉइंट्स मैंने वहां पर डिस्क्राइब कर दिए हैं। क्लियर है ना? ये बैक बॉन्डिंग देख सकते हो आप, Yes, sir. फ्रॉम नाइट्रोजन का लोन पेयर टू द सिलिकॉन का डी ऑर्बिटल, p to d, p pi d pi है। अब इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो आगे एक्सरसाइज 2 में था, वही मैंने साथ में लिया है। Which of the following statement is false for trisilyl amine? False पूछा है। पहला, 3 sp2 orbitals are used for sigma bonding, giving a plain triangular structure. No. ट्रू है ना? sp2 प्लेनार ज्योमेट्री है और 3 सिग्मा बॉन्ड्स उसके थ्रू बन रहे हैं। जो पाई बॉन्ड है वो ऑब्वियसली अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फ्रॉम द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आगे,
The lone pair of electron occupy a p orbital at right angle to the plane triangle, and this overlaps with the empty p orbital on each of the 3 silicon atoms, resulting in pi bonding. The False. lone, क्या गलत है इसमें? D orbital. एम्प्टी p ऑर्बिटल नहीं है, एम्प्टी d ऑर्बिटल है सिलिकॉन का, ठीक है? तो लोन पेयर p ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है नाइट्रोजन का, वो करेक्ट है, लेकिन वो देता किसको है? d ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन को, ठीक है? तो खाली लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, मतलब कुछ नहीं है कि लोन पेयर p ऑर्बिटल में होता है और जो डोनेट करता है वो d ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन में होता है। तो ये p दिया है इसलिए गलत है और ये आपका आंसर भी है। तो आगे दो स्टेटमेंट करेक्ट होने चाहिए। The NSI bond length is shorter than the expected NSI bond length. Yes, because NSI का bond order क्या हो गया? What will be the bond order? यहाँ पे 4/3. Yes, BF3 के जैसा 4/3 1.33 हो गया। And if the bond order increases, the bond length decreases. तो ये bond length shorter हो गया, correct है, statement true है। And it's a weaker Lewis base, yes, then the trimethylamine, ये भी correct statement है। Beautiful question with a beautiful concept of tricyclyl amine. Clear? Yes, sir. चलो आगे का सेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड, ये भी काफी हद तक हम कर चुके हैं ऑर्गेनिक में। लेट्स सी द क्वेश्चंस। Which one of the following does not have intermolecular edge bonding? 2. 2, because orthonitrophenol famously had Intramolecular edge. इंट्रा। अच्छा, इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ। Meta is most, ortho is most stable. Ortho is most stable. Stable मतलब in what relation? ये हमने कहाँ पढ़ा था, पहले बोलो। रिलेशन सोचो, हमेशा कहीं पे भी को रिलेशन आता है ना सोचने का, ये हमने कहाँ पढ़ा था? ESR reactions of phenol. ESR reaction of phenol. So नाइट्रेशन के दो केसेस थे, one was with dilute, another was with concentrated. Dilute gives you two products, ortho and para nitrophenol, जिसमें से major product was Ortho. यही तो था, ortho nitrophenol, and the reason was intramolecular edge bonding, due to which its boiling point Decreases. and it becomes More volatile. more volatile, so it can be separated by Steam distillation. See, this is how you should remember the stuff. ये हमने कहाँ पढ़ा था? नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में, जिसमें दो केसेस था। डाइल्यूट वाले में दो प्रोडक्ट्स बनता था, एक्सपेक्टेड पैरा होना चाहिए था मेजर प्रोडक्ट, लेकिन ऑर्थो था। क्यों था? इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग। उससे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ज्यादा वोलेटाइल होता है, और स्टीम डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट किया जा सकता है। समझा? Yes. तो ये कर चुके हैं, इट इज नथिंग न्यू। And all the other compounds, you can observe water, hydrofluoric acid, acetic acid, definitely it gives you the intermolecular edge bonding. And acetic acid में कितने edge bonds बनते हैं between two molecules? भाई भूल गए क्या? एसिडिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों था ऑर्गेनिक में फॉर द ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स? एसिड्स हैड द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ना, एसिड, Yes. अल्कोहल। तो एसिड का क्यों था? Due to intermolecular edge bonding. Due to which it forms a between two acid molecules how many H bonds are formed? दो बनते हैं, लेकिन HF की बात करो तो एक ही H बॉन्ड बनता है ना दोनों के बीच में। पानी की बात करो, एक ही H बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में।
ठीक है, अल्कोहल की बात करो तो वो भी एक ही एच बॉन्ड बनाता है ना, इसीलिए अल्कोहल वर्सेस एसिड्स में एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, क्योंकि इसमें इसमें एक ही एच बॉन्ड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में 2 एच बॉन्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट, which compound have lowest boiling point? H2S. H2S, because बाकी 3 कंपाउंड्स H bonds बनाते हैं, ये नहीं बनाता है। Which of the following compound has max number of H bonds per mole? ये भी हम कर चुके हैं। H2O. H2O, इनफैक्ट कितने H bonds बनते हैं पर मोल ऑफ वाटर? Two. 4 बनते हैं ना, 2 ड्यू टू हाइड्रोजन एंड 2 ड्यू टू द ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन से यहाँ पर एक और वाटर एसोसिएटेड होगा, इस हाइड्रोजन के साथ एसोसिएटेड होगा, इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एसोसिएटेड होते हैं। एक H2O 4 H बॉन्ड्स को बनाता है, और अगर आइस की बात करें तो इट फॉर्म्स अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, है ना, इसीलिए तो आइस वाज लेस डेंसर देन वाटर, वही रीजन भी था उसका। तो सराउंडेड बाय 4 water molecules, it forms 4 H bonds per mole. Remember, important. Which of the following has minimum melting point? Tell me, this is in turn related to which concept? क्या compare करोगे? What parameter you will think? Physical state. But do you know the physical state of each and every compound here? This is not something you will be able to compare, na? Because you need to know the physical state for that. What is a simpler way to compare it? Weaker bonds. Sorry? Weaker bonds. P का? Weaker bonds. Weaker bonds, yes. So, चलो सोचो. And weaker bonds बराबर है which in turn will be related to what parameter? एक simple parameter सोचो, क्या compare करोगे आप? You are on the proper track. Covalent character. हाँ बस, तो अल्टीमेटली बस यही चीज पूछ रहा हूं मैं कि क्या कंपेयर करोगे? कोवेलेंट कैरेक्टर। बिकॉज अगर कोई कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड्स है और आयोनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर या डोमिनेंट है, तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना। मिनिमम के लिए वीकर बॉन्ड्स इन टर्न इज रिलेटेड टू कोवेलेंट कैरेक्टर ओनली। तो अब बोलो आंसर। LIF. LIF, बिकॉज यहाँ पर देर विल बी अ स्मॉल कटाइन, लार्ज अनायन तो नहीं है लेकिन कटाइन छोटा है, इसका पोलराइज करने का जो पावर है वो काफी ज्यादा होगा, बराबर। तो CSF एंड LIF दे बिलोंग टू द मेटल एंड नॉन मेटल का फैमिली, एंड दे विल हैव आयोनिक बॉन्ड्स बट विथ कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अब और एक चीज, HCl और HF ये कौन से टाइप के कंपाउंड्स हैं? आर दे कोवेलेंट और आयोनिक? Covalent. दे आर कोवेलेंट बट विथ आयोनिक कैरेक्टर, बराबर। तो अब अगर यहाँ पर हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करें तो CSF विल हैव अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, तो इसका तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने वाला है अनडाउटेडली।
HF के लिए H बॉन्ड्स बनता है HF HF के बीच में, मतलब इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्गर होगा, तो ये भी रूल्ड आउट है। अब आपके पास बचा HCl which is a covalent compound with ionic character and LiF which is an ionic compound with covalent character। तो अब इनमें मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करो, will it be LiF or will it be HCl? HCl। सी, क्योंकि HCl कोवेलेंट कंपाउंड है आयोनिक कैरेक्टर के साथ, LiF आयोनिक कंपाउंड है कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ, तो उसमें स्टिल आयोनिक का जो प्रपोर्शन है वो रहेगा, इसलिए आयोनिक के हिसाब से इसका मेल्टिंग पॉइंट HCl के कंपैरिजन में डेफिनेटली ज्यादा होगा। In general, ionic compounds will have way higher melting points as compared to a covalent compound. Do you agree with that? Yes, sir। एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वरना ये टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा कंफ्यूजन होगा, इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए, द कंफ्यूजन इज गोइंग टू बी देयर। बट एक सिंपल चीज मैंने क्या बोला, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखकर आपके दिमाग में आना चाहिए लो या मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट मतलब हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, और हाई कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें होगा जो ऑलरेडी कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन उसमें थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर रहेगा, मतलब योर डोमिनेंस विल बी टुवर्ड्स अ कोवेलेंट कंपाउंड रादर देन एन आयोनिक कंपाउंड हैविंग अ कोवेलेंट कैरेक्टर। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir। तो द आंसर विल बी 2 HCl। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये टॉपिक भी हम काफी बार कर चुके हैं। Which of the following models best describe the bonding within a layer of graphite structure? Carbon family. 3। Non-metallic covalent bonding. Carbon atoms are joined by covalent bonds in graphite within a layer. It has a layer-like structure, and between the layers there are Van der Waals force। weak van der Waals forces. तो within a layer non-metallic covalent bonding है, ठीक है। और हमने बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर किया था लेयर का और बिटवीन द लेयर्स का, ठीक है, उसका रेशियो वगैरह भी हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। नेक्स्ट, which of the following is false? Van der Waals forces are responsible for formation of molecular crystals. अच्छा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सॉलिड स्टेट में कर चुके हैं, चार टाइप के सॉलिड्स हमने डिस्कस किए, राइट? मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर देयर आर 3 सब टाइप्स। Between the molecules you can have a dipole-dipole attraction, तो polar molecular solid, or you can have H bonds, तो H bonded molecular solid, or you can have weak van der Waals, so non-polar molecular solids, correct? Yes, sir। So van der Waals forces are responsible for formation of molecular crystals। अब ये स्टेटमेंट छोड़ो, बाकी पहले 3 रीड कर लो फिर देखते हैं। Branching lowers the boiling point of isomeric organic compounds due to reduction in van der Waals forces of attraction। अरे ये तो कर चुके ना भाई, True। ऑब्वियसली बीडीपी का रूल है ये। ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक आइसोमर्स में। इन ग्रेफाइट वैन डर वाल्स फोर्सेस एक्ट बिटवीन द कार्बन लेयर्स। True। अभी पढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन स्टाइबीन। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 छप जाना चाहिए तो दिमाग में। True। ट्रू और फॉल्स? Group 15 hydrides, what was the order of boiling point? Is ammonia first?
अरे how can you forget this? Ammonia का H bonds is not that stronger as compared to water or HF. That is the reason in this case SbH3 and ASH3 का van der Waals because of the size is more dominant than the H bonds of ammonia. याद आया कुछ? Yes, sir. अरे ये तो रट लो, नहीं याद है तो. This is very important. SbH3 has a boiling point higher than, ASH3. Then comes ammonia. Then comes, Phosphate. कुछ गड़बड़ किया मैंने, सॉरी. Bismuth का सबसे ज्यादा, Bismuth hydride will have the highest, followed by SbH3. थर्ड पे आता है अमोनिया, फिर आता है आर्सीन और बाद में आता है फॉस्फीन. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज लेसर एज कंपेयर टू स्टाइबीन. तो ये तो डेफिनेटली एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. आंसर फोर्थ है. अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो एक्चुअली पार्शियली करेक्ट है, बट स्टिल अगर आप चार ऑप्शन में से देखोगे तो ये स्टेटमेंट तो कंप्लीटली गलत है ना, इसलिए आंसर फोर्थ होगा. वरना अगर बात किया जाए मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स का तो उसमें पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, एच बॉन्ड्स भी हो सकता है. So it's not that only van der Waals will be the force of attraction. Clear? Yes, sir. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कहीं पे अगर पार्शियली करेक्ट का डाउट हो ना तो चारों स्टेटमेंट्स रीड कर लो, और अगर आपको लगता है कि बाकी स्टेटमेंट 100% करेक्ट है तो आंसर फर्स्ट होगा बिकॉज इट वाज पार्टली करेक्ट. बट अगर आपको लगता है फोर्थ ऑप्शन जो है वो कंप्लीटली ही गलत है तो फिर आंसर वो होगा. तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पर कंफ्यूजन इस तरह से आ सकता है आपको, तो ध्यान रखना उसमें. और पी ब्लॉक पढ़ते जाओ बाबा, भूल मत जाओ. दीज ऑल थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत कॉमन चीज है ये. ऐसा नहीं एकदम अंदर अंदर से कुछ पूछ लिया. इट इज समथिंग विच नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड. हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, 16, 17 हमने बहुत अच्छे से किया है. मैंने करवाया रादर, अभी तुमने किया है नहीं किया वो अलग बात है. बट ड्रैगोज रूल, बेंड्स रूल, ये सब मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. सो प्लीज गो थ्रू इट. और जब आप ये एमसीक्यू सॉल्व करो कहीं पे रेफरेंस आए प्लीज जाओ, गो थ्रू कर लो और वापस आ जाओ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको पूरा पूरा चैप्टर करते रहो. जब भी कुछ रेफरेंस आए, जिस चैप्टर का रेफरेंस है उस चैप्टर में जाओ, उस टॉपिक को पढ़ो, वापस बाहर आ जाओ. ठीक है? तो ऐसे क्या होगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हमने ऑलरेडी किया है that will get revised as you solve the MCQs. And this is how you should prepare. This is the best way to prepare. छोटे छोटे टॉपिक्स को ले लेके रिवाइज करो. चलो, some MCQs from exercise 2. Which of the following is electron deficient compound? B2H6. B2H6. Because बोरेन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. वो डाइमर इसलिए बनाता है बिकॉज इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेयर. तो ऑब्वियसली आंसर B2H6 है. और B2H6 के बारे में बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की है. बनाना बॉन्ड्स, फिर जो टाइप ऑफ द बॉन्ड बीच में बनता है ब्रिज बॉन्ड, दैट इज व्हाट टाइप? 3C2E. 3C2E, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन. अब बोरेन का, बोरॉन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस बोरॉन ऑफ B2H6 का हाइब्रिडाइजेशन, इज इट सेम? हाँ, No. नो. बोरेन में क्या आता है? sp2. sp2. और ये जब ब्रिज बॉन्ड्स, बनाना बॉन्ड्स 3C2E माइनस का बॉन्ड्स बनाता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक ऑर्बिटल वेकेंट होता है, तभी तो 3C2E बनता है. नेक्स्ट, फॉर हाइड्रोजोइक एसिड, व्हाट इज हाइड्रोजोइक एसिड फॉर्मूला? 3H. N3H.
Which of the following resonating structure will be least stable? A resonating structure which is least stable. What is the first point or the criteria to be observed? Neutral is better than charged. Neutral is better than charged. If you observe, all of them are neutral. नेट चार्ज 0 है सब में, परफेक्ट. अब वो नहीं कंपेयर कर सकते तो आगे एक सीक्वेंस दिया था ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, स्टेबिलिटी कैसे देखना है. It should be complete. The octet should be complete. So a carbon with an incomplete octet is less stable than the carbon with a complete octet. यानी C+ वाले species कम stable होते हैं. ये just एक generalized rule है. अब सोचो यहाँ पर, is that rule applied to any of the structure? Second. किस atom में problem है? Which atom is not having the octet complete? वो पूछ रहा हूँ. N+. इसमें देखो आप नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फर्स्ट और थर्ड में ऑक्टेट कंप्लीट है. ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है और न्यूट्रल है, मतलब डेफिनेटली तीनों स्ट्रक्चर में से सेकेंड वाला स्ट्रक्चर सबसे कम स्टेबल एंड इट विल बी द लीस्ट प्रिफर्ड स्ट्रक्चर अमंग द स्पीशीज. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट, ये तो मुंह पे होना चाहिए. करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग XOX बॉन्ड एंगल इज. कैसे भूल सकते हो? इसके तो वैल्यूज के साथ मैंने कंपैरिजन करवाया. दिमाग लगाओ, आएगा. मुझे लगता है पी ब्लॉक और ये ब्लॉक एलिमेंट्स का सीरीज वापस शुरू करना पड़ेगा. Forgetting the stuff. आकृति सो गई क्या? सेकेंड. अरे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो देखते ही आपको आंसर आने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. कोई नया क्वेश्चन हो तब तुम लोग दिमाग लगाओ, अलग बात है. अभी जेई लेवल पे एक बार जो कॉन्सेप्ट कर दिया है उसके बाद उसको याद रख लो. कहाँ आप दिमाग लगाते बैठोगे उतना? जब एक्सप्लेन किया तब सब समझ में आ गया, उसके बाद तो डायरेक्ट याद आना चाहिए आपको. अब इसका रीजन सिंपल था. ऑक्सीजन के साथ देयर आर chlorine atoms, hydrogen atoms and the fluorine atoms. तो सबसे पहले यहाँ पर क्लोरीन के बल्कि साइज की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होंगे. बिकॉज ऑफ द रिपल्शन दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी हाईएस्ट एंड ये करीबन 110 डिग्रीज के आसपास आता है. ठीक है. अब HOH वर्सेस FOF में आप सोचोगे कि वाटर का बॉन्ड एंगल सबसे लीस्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है. क्यों? because fluorine and oxygen में fluorine is very much electronegative or more electronegative than oxygen, due to which electron density around the central oxygen atom decreases. इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम हो जाते हैं और ये वाला एंगल सबसे छोटा हो जाता है अराउंड 103 डिग्रीज. और वाटर का तो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल हमें पता ही है 104.5 डिग्री. और इसके साथ एक और कंपैरिजन मैंने बताया था जिसका बॉन्ड एंगल 118 डिग्री होता है. किसका? एक और 4 ऑक्साइड्स हमने ये कंपेयर किया था. हाँ, ClO2. वैसे याद आना चाहिए, ClO2 में क्लोरीन के साथ 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो यहाँ पर डबल डबल, एक लोन पेयर और एक रेडिकल. ठीक है.
तो यहाँ पर जो एंगल है दैट इज 118 डिग्रीज हाईएस्ट। तो एक्चुअल ऑर्डर जो हमने पढ़ा था ना दैट वाज ClO2 देन Cl2O सॉरी Cl2O देन वाटर एंड देन OF2। रट लो, याद रख लो, ऐसे क्वेश्चंस तो आपको अगर रिपीट हो गए जेई में तो खुश होना चाहिए आपको। यू शुड रिजॉइस एट दैट मोमेंट। मजा आ गया, वाओ, 4 मार्क जेब में विद इन 1 सेकेंड। दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यू शुड हैव। Which of the following statement is incorrect? Now, ये टाइप के क्वेश्चंस में आपको बेसिकली वो सीक्वेंस लिखना पड़ेगा एमओ का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, और फिर देखना पड़ेगा कि N2 से N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए सबसे पहले सीक्वेंस क्या था? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। याद रखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में पाई स्टार शुड बी टुगेदर। पाई एंड पाई स्टार साथ में होने चाहिए, बट ऑक्सीजन फ्लोरीन को छोड़ा तो बिफोर दैट, मतलब नाइट्रोजन कार्बन 2 के लिए पाई और पाई स्टार अलग होना चाहिए। मतलब पहले यहाँ पर, हाँ फर्स्ट मतलब आपने ये सीक्वेंस के बारे में बोला, हाँ ठीक है, पाई 2px पाई 2py फिर सिग्मा 2pz और बाद में पाई स्टार। मैंने ऐसे याद रखने बोला था कि ऑक्सीजन फ्लोरीन में पाई स्टार साथ में होना चाहिए, बाकी सब में अलग होना चाहिए। अलग मतलब ये ऑल्टरनेट। ठीक है, अब नाइट्रोजन जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है will have the filling as 2 4 6 8 9 10 11 12 2 2 एंड 13 14। ये हो गया N2 का एमओ सीक्वेंस, समझा? Yes, sir. अब पूछा है कि N2 से N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? सो इट इज गेटिंग रिमूव फ्रॉम द BMO. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं? Yes, sir. Yes. फिर ऑक्सीजन से O2 प्लस ना, ऑक्सीजन में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो डायरेक्टली पता है किधर होने चाहिए, Pi star. एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। तो जो निकलेगा वो भी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार से निकलेगा। तो ड्यूरिंग O2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, ड्यूरिंग O2 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द बॉन्डिंग। False. नो, वो निकलता भी एंटी बॉन्डिंग से और ऐड होता भी एंटी बॉन्डिंग में, है ना? तो ये इनकरेक्ट है, ये आपका आंसर है। और Cn माइनस का फॉर्मेशन 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ Cn। यस, अब Cn मतलब इट विल हैव वंस अगेन 14 इलेक्ट्रॉन का सम, और क्योंकि ये कार्बन और नाइट्रोजन है इसलिए इसका सीक्वेंस एग्जैक्टली N2 के जैसा ही होगा। द डायटोमिक heterogeneous molecule Cn will have the MO sequence same as N2। और OF का अगर सीक्वेंस लिखना है तो कौन सा फॉलो करोगे? Reverse. रिवर्स, ये वाला रिवर्स हो जाए, मतलब O2F2 वाला सीक्वेंस OF के लिए अप्लाई करोगे, C2N2 और Cn उसके लिए ये वाला सीक्वेंस जो सामने है। OF के लिए सेम एज O2F2 सीक्वेंस। वो तो समझ में आता है क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है वो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का है। ठीक है, according to molecular orbital theory, which of the following is correct? Now you can see the first option, it's given as LUMO. LUMO stands for lowest unoccupied molecular orbital। तो यहाँ पर दो टर्म्स है, LUMO and HOMO। This is lowest unoccupied molecular orbital and this is highest occupied molecular orbital। तो कुछ नहीं है, सीक्वेंस में जैसे पीछे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, here the last electron is occupying the BMO, hence this becomes the
हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो हो गया, और ये जो पाई स्टार है ये लूमो हो गया, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब होमो लूमो का जो एनर्जी गैप है ना, दैट डिसाइड्स द कलर ऑफ द स्पीशीज। होमो लूमो गैप डिसाइड्स द कलर ऑफ द स्पीशीज। तो यहां पर अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूं, व्हाट आर द कलर्स? F2 is yellowish, yellowish, chlorine same, ये दोनों येलोइश होते हैं, उसके बाद ये रेडिश ब्राउन और ये वायलेट कलर होता है, बराबर। तो दिस कलर और द डिफरेंस इन द कलर इज रिलेटेड बिटवीन द होमो लूमो गैप। F2 का जो सीक्वेंस लिखते हैं उसमें भी होमो और लूमो आएगा, उसका जो गैप है उसके बेसिस पे कलर डिसाइड होता है। अब अगर गैप छोटा होगा तो द एनर्जी डिफरेंस विल बी small, लेसर, और अगर एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वेवलेंथ large, लार्ज होगा। समझा? yes sir, हाँ, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं होमोलुमो गैप के बारे में। ठीक है, तो I2 का वायलेट कलर क्यों आया? बिकॉज होमोलुमो गैप जो है इसके लिए काफी बड़ा रहेगा। चलो, तो अब C2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, सॉरी C2 स्पीशीज के लिए हमें लूमो देखना है। अच्छा, C2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी गायब हो जाएगा ना, ये सीक्वेंस होगा ना। yes sir, तो अब यहाँ पर दिस विल बिकम द होमो एंड सिग्मा 2pz विल बिकम द लूमो। आ रहे समझ में? yes sir, सीक्वेंस लिखो, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है वो होमो होता है, उसके बाद वाला लूमो होता है। नाम से ही समझ में आता है, कुछ है नहीं इसमें। तो अब यहाँ पर लूमो लेवल फॉर C2 इज सिग्मा 2pz। ट्रू या फॉल्स? ये सही है। In C2 molecules, both the bonds are pi bonds. Now this is important. C2 मतलब यहां तक का सीक्वेंस, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स देखो कहाँ जा रहे हैं, पाई में जा रहे हैं। और C2 का अगर आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, पीछे ही कर लेता हूँ। C2 के लिए द बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट वाज द फॉर्मूला एज पर MOT? half of NB minus NA, हाफ ऑफ NB माइनस NA। ध्यान देना, अरे सॉरी। तो बॉन्डिंग में कितने, 2, 4, 6 और 8 है ना। तो हाफ ऑफ 8 बचे 4, तो 4/2 2। तो बॉन्ड ऑर्डर C2 मॉलिक्यूल का 2 आता है, और ये जो दो बॉन्ड C के बीच में होते हैं ये दोनों ही पाई बॉन्ड्स होते हैं, एंड दैट अगेन इज कंफर्म्ड थ्रू द सीक्वेंस। वैसे कोई भी दो एटम्स के बीच में दो बॉन्ड्स मतलब एक सिग्मा एक पाई होता है ना। बट सिर्फ C2 में जो दो बॉन्ड्स होते हैं वो दोनों ही पाई बॉन्ड्स है, और वो कोई और थियरी आपको नहीं समझा सकता एक्सेप्ट MOT, और वो सीक्वेंस के थ्रू क्लियर होता है। समझा? yes sir, ठीक है, तो C2 मॉलिक्यूल्स में दोनों ही पाई बॉन्ड्स होते हैं, करेक्ट है। एंड C2-2 आयन में देयर इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। C2-2 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब सिमिलर टू N2, हाँ कि नहीं? yes sir, तो जैसे N2 में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, वैसे इसमें भी एक सिग्मा 2 पाई। इनफैक्ट ये तो अपना वेल नोन आयन है ना भाई, एसिटिलीन आयन है ये, जिससे एसिटिलीन बनाया हाइड्रोलिसिस से। तो सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आंसर इज 4। समझा? yes sir, Next, among the following, which one will have the largest OO bond length? How do you solve this? bond order, बस बॉन्ड लेंथ आप सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर से सॉल्व करोगे,
तो लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ मतलब स्मॉलेस्ट बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। अब पहला वाला, व्हाट इज द स्पीशीज ओवर हियर टू बी कंपेयर्ड? सुपर ऑक्साइड। O2 -1 सुपर ऑक्साइड, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.5। शॉर्टकट वाला टेबल याद करो। 17 इलेक्ट्रॉन, 17 में 1.5 था, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। O2 तो अपना न्यूट्रल है तो बॉन्ड ऑर्डर 2। O2 प्लस 2.5। O2 प्लस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 15। 15 मतलब 2.5 वाला बॉन्ड ऑर्डर आता है। और K2O2 is O2 -2। and having a bond order 1, so the answer is 4। खत्म। ये भी जेई में आ चुका है। क्लियर है? यस सर। इसमें दो चीजें कंबाइन हो गई, एक तो स्पीशीज आइडेंटिफाई करना है बाय लुकिंग एट द मॉलिक्यूल, और बाद में उनके बॉन्ड ऑर्डर्स कंपेयर करके बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना था। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। द करेक्ट ऑर्डर इन विच द O बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस इन द फॉलोइंग इज। O3 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? ओजोन 1.5। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है 1.5, O2 का 2 और H2O2 में पेरोक्साइड है तो 1। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा पेरोक्साइड का होगा, फिर ओजोन का होगा और फिर ऑक्सीजन का। पेरोक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन इज द आंसर, ऑप्शन 3। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, the dipole moment of chlorobenzene is 1.5 dBs, so dipole moment of tetrachlorobenzene will be how much? वेक्टर चैप्टर आता है तो आंसर सिंपल है, 1.5। 1.5। ये दोनों आपस में कैंसिल ऑफ हो रहे हैं तो ये दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। दीज टू आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब कैलकुलेट कर लो तो आंसर 1.5 ही रहेगा। समझा क्या? So, but in reality, the structure is not like this, right? ऑफ व्हाट? क्लोरोबेंजीन? स्ट्रक्चर इज नॉट लाइक दैट मतलब? So it has the configurations, right? कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या एग्जैक्टली exactly? Oh, sorry, that is cyclohexane. हाँ, वो तो चेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बोल रहे हो, ये बेंजीन है विच इज हैविंग अ प्लेनार स्ट्रक्चर। कॉन्फ़िगरेशन नहीं, वो कॉन्फॉर्मेशन है। हाँ, नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज Li2, Li2 नेगेटिव, Li2 पॉजिटिव। ये भी मैंने लास्ट सेशन में किया है। Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। 6। तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। अब Li2 का प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से, और Li2 माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा नेक्स्ट वाले सिग्मा स्टार 2s में, है ना? अब हाउ विल यू कंपेयर द स्टेबिलिटी? बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है कैलकुलेट करो। हाफ ऑफ 4 - 2 दैट इज 1। तो Li और Li के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है फॉर द Li2 स्पीशीज। और अगर लेट से मैं Li2 प्लस की बात करूं तो सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 1s2
सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s1 है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा हाफ ऑफ 3 minus 2 which is equal to 0.5 और Li2 माइनस में भी 0.5 आएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो अनडाउटेडली Li2 है, लेकिन Li2 प्लस में और Li2 माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा डिस्पाइट ऑफ द सेम बॉन्ड ऑर्डर? Li2 प्लस, क्योंकि उस केस में इलेक्ट्रॉन इज इन द BMO, Li2 minus में electron goes in the ABMO, which is not preferable, and that why it will lead to instability. So the answer is option 2. ये भी मैंने लास्ट सेशन में किया था और ये जेई में आ चुका है। ठीक है, डन। So I finished exercise 2 and the whole of chemical bonding with all the stuff which we had already discussed in the previous inorganic or organic रिविजन ऑफ दैट। तो काफी हद तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने जो किए थे वो भी रिवाइज हो चुके हैं। एंड व्हाइल यू सॉल्व द एमसीक्यूज, मेक श्योर यू गो बैक टू द प्रीवियस चैप्टर्स वेरेवर वी हैव लर्नड दैट कॉन्सेप्ट एंड यू रिवाइज इट एंड कम बैक। ये हैबिट आप डालो कि कहीं पे भी कुछ भी रेफरेंस आता है, जाओ उसको रीड करो और वापस आ जाओ। इट विल हेल्प यू टू रिटेन द थिंग्स मोर बेटर। ठीक है? Yes, sir.